my dancing took a back seat. My hunger for acting kept on going more and more and more, and I was like, यार इस process में तो बहुत मजा आ रहा है. I have been out of work. Social media से पैसे कमा रहे हैं यार लोग और career बना रहे हैं, and many are earning more than whatever you can say actor or anyone who's in a normal field also. उनसे ज़्यादा कमा रहे वो लोग. Yeah, exactly. Which is it's a new trend, it's a new thing that is going on, and I think everyone should bank on it. The industry has changed, they become more mature, they understand emotion. I think we are in the very good stage of cinema. Cinema, yes. Yeah. शाहरुख सर को देख ही होता है हमेशा, even though I've worked with him and even though I've conversed with him, party भी की है उससे, Wow. but I still get butterflies and nerves. Right now, casting couch we say कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, so we associated that with girls only. Girls only, So yeah. guys are not vocal about it so much. Hi guys, welcome to our very first episode of फिल्मी बातें on Bollywood 4 PM. मैं हूँ आपकी होस्ट सेजल माखीजा और यहाँ आपको मिलेगी बॉलीवुड की सारी खबर और अनटोल्ड स्टोरी एंड बिहाइंड द सीन. आज हमारे साथ है वेरी टैलेंटेड जेसन थैम, जिनने की है रणनीति एंड काफी कुछ भी, जिगरा प्लस हनीमून फोटोग्राफर. वेलकम. How Thank you you. feeling? I'm feeling nervous. Nervous? Why are you nervous? I'm nervous because I've never done podcast before, so But you are with me, so lovely. it's Yes. okay. हाँ. Yeah, you don't have to feel आप nervous. दिलासा देते रहो and मैं Obviously, ये हमारा काम है. 100%. Also, you're making me feel comfortable, so I think I'm fine. So let's start with the scratch. When I saw you in D3 and now in Jigra, Yeah. it's खुद को बड़ा होते हुए देखना. For me, it's the same. Like मैंने खुद I को think बड़ा. age-wise मैं बड़ा ही हूँ. But काफी. still, when I used to see you in D3 and now I saw you in Jigra, Correct. vast. Yes. बहुत बड़ा Yes. चीज है. हमने बचपन में किसी को देखा है. Correct. He is working with Alia Bhatt and he worked with Shah Rukh Khan. Why not? Yes. Deepika Padukone. Why Yes, not? yes, So lots yes. of things are here to share. Yes. Let's Yes. start with your D3 वाला journey and till now वाला. मैं सबसे पहले मैं शुरुआत से बताता Yeah, हूँ. why मैं फाइनेंस एंड अकाउंटिंग Oh. का स्टूडेंट था, एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ सीए फर्म कॉल्ड अर्नस्ट एंड यंग. वहाँ पे मैंने कुछ 10 महीने काम किया है और फिर मैंने बोला यार आई थिंक मुझे डांस करना है. You think? तो my because I was initially starting with dancing in during college time. तो कॉलेज में ही मेरे डैड ने बोला कि आई होप ये सब हॉबी ही है ना, मतलब मैंने कहा हाँ कोई करियर तो है ना, ये करियर तो है ना डांस, मैं उसको हॉबी लेके ही घूम रहा हूँ एंड ऑल. तो ही वाज लाइक ठीक है. सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ competitions, jamming with friends, and I used to win a lot of competitions. Wow. तो ना एक कॉन्फिडेंस बन गया था. हाँ. तो मैंने कहा चलो यार रियलिटी शोज चल रहे हैं Why आजकल, not? व्हाई नॉट, DID चल रहा था उस टाइम, बूगी वूगी चल रहा था. Yes. दिस वाज बैक इन 2010. तो मैंने बोला यार 2011 में जस्ट डांस करके एक शो आया था. ऋतिक रोशन वाज द जज, देन फारा खान एंड वैभवी मर्चेंट, these three were the judges. और मैंने बोला यार why not let me try it. तो गया मैं and I got selected. अब कोरियोग्राफी करते एक दिन मुझे नहीं, मेरा एक कंटेस्टेंट को, where I was choreographing, मेरे कंटेस्टेंट को एक कॉल आया saying कि एक शो है दिल दोस्ती डांस करके कुछ शो है, आप मुझे आया है, उसको आया था कि एज एन एक्टर वुड यू लाइक टू ऑडिशन. तो उसी में बोला सर मुझे तो नहीं करना है, आपको करना है तो आप देख लो. मैंने बोला ठीक है फोन दे दे मैं बात कर लेता Why हूँ. not? तो हाँ व्हाई नॉट, एंड इट वाज वेरी लाइक आई डिडंट वांटेड टू बी एन एक्टर देन. आई वाज लाइक हाँ ठीक है. You wanted to become कोरियोग्राफर. आई Yeah. वांटेड कि चल मैं कोरियोग्राफ करूंगा फिल्म्स एंड ऑल वगैरह एंड ऑल. तो मैंने कहा यार ठीक है ट्राई कर लेता हूँ, वेंचर कर ही रहे हम लोग मुंबई. Why क्यों नहीं? not? तो आ गया एंड आई वेंट फॉर द ऑडिशन. Wow. I went for the audition. तो my dancing was very strong. Yeah. अभी the show was so good कि show में half dancing चाहिए, half acting चाहिए. Yeah, the whole show was About dance only. Correct. Dil dosti dance. It was Correct. that only. तो डांस वाला तो पार्ट हो गया, Yeah. अभी एक्टिंग वाला बिट तो बिल्कुल जीरो था मैं. सो आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन के लिए मैंने कुछ
35 टेक या 40 टेक लगाए जस्ट टू गेट इट राइट। और उसमें से भी मैं अभी मोनोलॉग्स होते हैं मोस्टली व्हेन यू डूइंग लाइक टीवी सीरियल एंड ऑल ना, तो मोनोलॉग्स होते हैं तो लंबे लंबे होते हैं। अब लंबे लंबे मैं ऐसे देख के मैं अरे फ्लैट बोल रहा हूँ टा कि मैं हाँ यहाँ का हूँ ये करने वाला हूँ वगैरह वगैरह, वो पूरा लाइन बोल कॉपी पेस्ट मतलब लर्न करके मैं बोल रहा हूँ। अभी क्रिएटिव आ रहे हैं मेरे पास, वो कह रहा है यार इस 3 लाइन में ना तू ये इमोशन डाल, इस 4 लाइन में ना ये डाल, लास्ट में थोड़ा सीरियस हो जा और लास्ट में बिल्कुल फन वे में ले जाना। कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या बोला तूने? व्हाट आर यू इवन सेइंग? तो इसलिए हाँ, तो इसमें ये बदल, ये इमोशन डाल और ये वाले इमोशन डाल। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं पूरा खत्म ही कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत है ये। करेक्ट। सो ही इज लाइक चल ठीक है तू ये ऑडिशन दे दे, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो आई गिव दैट ऑडिशन, माय डांसिंग वाज वेरी स्ट्रांग, तो मेरा ऑडिशन में वो क्लियर हो गया था बहुत आराम से। देन आई गॉट द सेकंड कॉल स्क्रीनिंग के लिए कि आप आ जाओ, स्क्रीन टेस्ट कर रहे हैं अभी। मैंने कहा ठीक है। अभी एक और मोनोलॉग थमा दिया, मैं बैठ के लर्न कर रहा हूँ उधर ही, और वहां से मुझे दिखाना है अभी, मतलब शूट करके देना है। मैंने कहा सर कैसे हो गया यार ये, मतलब आप इसमें भी आपको 3-4 इमोशंस चाहिए एक मोनोलॉग के अंदर। इसलिए यार अब तो करना पड़ेगा ना। I don't know how, but उसमें भी कुछ 25-28 takes लगे, but somewhere in the 19th take or the 25th take was fine. तो उनको मिल गया था कैसे भी। तो कह रहा है अभी हम लोग इसको आगे भेज देते, चैनल वालों को पसंद आ गया तो we'll take it forward. Correct. Simultaneously, I was getting a call for Jhalak Dikhla Ja. For a choreographer's part. I went for the meeting. तो वही सवाल जो होता है उनका कि व्हाट डू यू थिंक, कि क्या अगर कोई कंटेस्टेंट मिला एंड उसका ये है फोर्टे तो व्हाट वुड यू डू, वो सब क्वेश्चंस चल रहे थे। सो दीज टू वर गोइंग साइमल्टेनियसली। आज अगर दोनों हो गया तो मैं करूंगा कौन सा। करेक्ट। और मैंने फिर थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन लगाया कि इन केस झलक में हो गया और मैं फर्स्ट वीक में आउट हो गया, तो फिर I have to find new work then. Correct. Whereas this one is there's no limit. It's limitless. मतलब episodes चलते जाएंगे। मैं यार एक्टिंग चला जाओ क्या? तो मैंने कहा यार कैसे भी अगर मुझे इसके लिए भी हाँ मिल गया, मैं आई थिंक दिल दोस्ती डांस ही करूँगा। So I went for दिल दोस्ती डांस only. And then from there जो चस्का लगा मुझे एक्टिंग को लेकर, I think my dancing took a back seat. And my acting my hunger for acting kept on going more and more and more, and I was like यार इस process में तो बहुत मजा आ रहा है, because the treatment is very different, the process is very different, the taking is very different, and I was like यार I'm getting more and more hungry कि यार मतलब कैमरास यूज हो रहे हैं, लेंस यूज कौन से कर रहे हैं, अच्छा ये वाइड होता है तो ये इसमें बिल्कुल क्लोजअप हो रहा है तो इसमें क्या इमोशन देना है, तो उसमें बहुत मजा आ रहा था। साइमल्टेनियसली आई वाज गिविंग ऑडिशंस अलग, तो एड के ऑडिशंस कर रहा हूँ तो एड में होता जा रहा है मेरा, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। इस पूरे जर्नी में आई काइंड ऑफ फॉरगॉट डांसिंग। So if we, लोगों का एक सेटबैक होता है हमेशा, ऐसा नहीं है कि we have always a golden period, right? So there was any setback in your life? So I would be lying if I would have said कि नहीं मैं तो I've been very busy and all that वगैरह। Since we have chosen, I feel the toughest career path because everyone can audition and everyone. मतलब there are many people who can come and audition. Correct. और उसमें से कुछ 1-2 सिलेक्ट होते हैं। I feel इसमें इतना कंपटीशन है कि काम मिलना भी बहुत competitive हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मुझे काम मिला तो शायद 6 महीने के बाद मिले, या शायद 8 महीने के बाद मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आज काम खत्म हुआ अगले हफ्ते ही मिल गया, तुम चालू कर रहे हो। सो बेस्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल दिस इज बीइंग पेशेंट, ऑब्वियसली लाइक एवरीबॉडी। आई हैव बीन पेशेंट नॉट ओनली बाय माई सेल्फ बट ऑल्सो वर्कड ऑन माई सेल्फ लिटिल बिट, कि एटलीस्ट मैं एक्टिव रहूं, probably in social media, active physically rahun, go to the gym, go to play basketball because I'm a basketball fan, and possibly learn a new language if
nothing. You do? Yeah, why not? I'm trying to learn Chinese. Wow. Yeah, I am Chinese. That's different. But I'm trying to learn a different type of Chinese. Somehow I know some of words of Chinese. Yes. Shishinia. Shishine. Yeah, I Ni know hao ma some. and all that. Yeah. Correct. So it's about building your library basically. कल को किसी ने भी कुछ बोल दिया कि मुझे ये वाला कैरेक्टर चाहिए, ये वाला चाहिए, तो तुम खोज सकते हो ना कि हाँ ये मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, कौन सा वाला चाहिए, अच्छा ये वाला भी आता है. So you need to keep building that. ये नहीं किया तो you can probably start cooking. You never know what things open up, doesn't right? matter. So patience is one thing that I've learned from all this, and I have been out of work probably 8 months. Oh God. Then I what you haven't. have done in those like 8 months. See, now again, what do you consider work? Like, there's बहुत पैरामीटर्स होते हैं. अब वो 8 महीने में मैंने शायद 4 या 5 एड्स किए. okay. बट फॉर मी वर्क वुड बी लाइक रेगुलरली मैं कर रहा हूँ. Correct. लाइक Daily on टीवी you're सीरियल going, yeah. मैंने टीवी सीरियल में मैं 20-20 दिन 25-25 दिन काम कर रहा हूँ, तो वो अलग हो गया, वो मेरे लिए काम हो गया. Correct. अगर मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ तो 2 महीने 3 महीने का वो होता है प्रोजेक्ट यूजुअली, तो उस पीरियड में मेरा काम चल रहा है, उसके बाद कुछ भी नहीं. सो आई डोंट कंसिडर कि ये गैप मिला 2 ऐड कर दिया, ये गैप मिला फिर ऐड किया, तो वो मेरे लिए काम नहीं किया बेसिकली मेरे लिए. Correct. सो सबका परिभाषा फॉर वर्क इज वेरी डिफरेंट. Different. Correct. लाइक फॉर यू इट विल बी लाइक अच्छा मैंने 6 महीने में 4 एड्स किए तो मैंने तो काम किया है. Correct. मेरे लिए वो नहीं है. मेरे लिए कि 5 किए हैं एंड आई हैव नॉट डन अ रेगुलर वर्क, सो इट्स नॉट अ वर्क फॉर मी. But again, always been patient, always believed in the upper who's Universe. there, upper universe, and someone who's sitting there and looking over us. And I believe in him. I believe in my craft. I believe in delivering whenever the time comes. So you should just need to be ready. See, talk about the social media nowadays. It's in very high. Yeah. I believe हर कोई वहाँ पे करियर बना रहा है अब तो. Correct. If you see every influencer, creators, वो हमेशा वहीं पे उनका वही जॉब हो गया है, वही बिजनेस हो गया है, they are making career. So do you believe somehow that is impacting अभी के जनरेशन पे या in any ways like choreography and anything acting wise कुछ impact करता है वो चीज? 100% it has impacted social media because though you can take it in 2 ways. You can take it the right way also, the wrong way also. Correct. But everyone is doing work. मतलब it has become so advanced. Like everything has become so advanced कि हम सब यार social media से पैसे कमा रहे हैं यार लोग. Correct. और करियर बना रहे हैं, and many are earning more than whatever you can say actor or anyone who's in a normal field also. उनसे ज्यादा कमा रहे वो लोग. Yeah, exactly. Which is it's a new trend, it's a new thing that is going on, and I think everyone should bank on it. If you still not jumped into the wagon, you still have the time to do it. ऐसा नहीं कि टाइम चला गया, क्योंकि सबका एक नीश मार्केट है, बस तुम दिखा नहीं रहे हो जो चाहिए. हम लोग बस ये सोच रहे कि अरे यार, हम लोग एक्चुअली पता है क्या कहाँ फंस चुके हैं कि हम वीडियो बनाएंगे पर अच्छा बनाएंगे, और अच्छा बनाने के चक्कर में हम वो सब कुछ ले लेंगे कि वो अच्छा बन जाए प्रोडक्ट. करेक्ट. बट वो बन जाता है और उसमें व्यूज नहीं आते. एंड व्हाट पीपल स्टार्ट डूइंग, अच्छा बनाने के लिए अच्छा फोन ले लो, अच्छा बैकग्राउंड ले लो. या पीपल स्टार्ट डूइंग दिस. अच्छा इक्विपमेंट्स ले लो, लाइट्स ले लो, ये ले लो, माइक्स ले लो. खर्चा तो पहले ही 2 लाख 3 लाख रुपए डाउन हो तुम. करेक्ट. और कंटेंट अभी तक तुमने कुछ नहीं बनाया. एग्जैक्टली. और अगर बना भी दिया तो तुम्हें व्यूज नहीं आ रहे. एंड यू लाइक अरे यार मैंने सब कुछ डाल दिया इसमें, व्यूज नहीं आ रहे. नहीं बनाता, फिर पीपल डू दिस. 4-5 के बाद नहीं बनाएंगे वो लोग. एंड व्हाट you have invest उसमें इतना ज्यादा अपने invest कर दिया कि करेक्ट आपका रिटर्न ही नहीं है. करेक्ट. सो अनलेस एंड अनटिल तुम जिद्दी हो और तुम कंसिस्टेंटली कर रहे हो ना, तो आई डोंट थिंक सो वो नर्चर होगा. यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट विद द कंटेंट दैट यू मेकिंग. हर हफ्ते अगर 2 भी निकाल रहे हो, कैसे भी निकाल रहे हो, 2 निकाल, चाहे उसमें व्यूज आ रहे नहीं आ रहे, तुम पहले 100 वीडियोस बनाओ.
या 500 वीडियोस बनाओ, उसके बाद सोचो कि अब हो रहा है नहीं हो रहा है, यू थिंक अबाउट देन. कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल लैक. हम लोग 4-5 के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अरे यार नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, बनाओ, फिर लेजीनेस टेक्स ओवर यू. सो यू नीड टू फोर्स योरसेल्फ, आई थिंक. How was your journey with जो भी थोड़ा बहुत था with Alia Bhatt? So it so happened that I gave an audition and I really wanted to work with Vasan sir. So I really wanted to work with him. I was like, chalo, probably whenever I have this opportunity, I will take it. Correct. However, I had auditioned for this with Nandini Shrikant. Okay. They are a casting agency, casting company. तो उन लोगों ने बोला कि यार ऐसे एक रोल है एंड ऑल वगैरह वगैरह. तो मैंने देखा, मैंने कहा दिस इज अ कैमियो रोल यार, आई मीन बट इट्स वासन सर. तो मैंने ऑडिशन तो दे दिया. देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम नंदिनी श्रीकांत, करण हिज नेम इज, ही वाज वर्किंग देयर. तो करण टोल्ड मी, यार जेसन सर हैज स्पेशली आस्क्ड यू फॉर दिस रोल, वुड यू डू इट? हाँ यार, मतलब सर ने तो बोल दिया तो फिर आई वुड डेफिनेटली वर्क विद हिम. तो I was like, I wasn't too mind शुरुआत में कि यार कैमियो करूँ नहीं करूँ, because I want to make a good impact and do, yeah, I want something that I can stay there, can stay with him. But I was like, let me seize this opportunity and let me see how it works. Why not? Yeah. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैं सर के लिए कर लूँगा कैसे भी. चला गया मैं शूट के दिन. And till today I thank the stars कि मैंने yes बोला था. Wow. Because I went there and sir was like, hey Jason, चलो ये सीन है, ये करना है. So initially, जो जिगरा में you guys must have watched, right? Yeah. That scene wasn't there. We had shot a different scene where me and Alia का one-on-one का basketball sequence था. And we shot that for 2 days, 2.5 days, I think. We shot a full basketball sequence one-on-one between me and Alia. एंड बेसिकली फर्स्ट राउंड में मैं स्कोर करता हूँ, सेकेंड राउंड में वो स्कोर करती है, थर्ड राउंड में हमारा कुछ हाथापाई होता है, फोर्थ राउंड में शी विंस, शी पुट्स अ 3 pointers और समथिंग लाइक दैट. एंड देन आई गेट रियली एंग्री बिकॉज उससे पहले देयर इज अ होल जुगलबंदी दैट वाज हैपनिंग. ओके, या, कि आई थिंक यू शुड ऑल लीव दिस कंट्री एंड ऑल वगैरह, वो सब लाइंस थे. बट उसके बाद एक प्रॉपर एक फुल बास्केटबॉल सीक्वेंस था, और वो खत्म होने के बाद देन देयर इज अ फाइट सीक्वेंस दैट हैपेंस. ओह या, दैट हैड, हाँ, तो वो हैंड वैंड कुछ नहीं था उस टाइम, प्रॉपर हैंड फाइट सीक्वेंस था. जहाँ पर वो लास्ट में जाके हमारा जो मनोज पावा सर है, वो बंदूक निकालते, उसमें भी था, बंदूक निकालते, तानते हैं सामने और फिर हम लोग चले जाते हैं. So that was there, we shot it, and so I was very impressed. I really liked his energy. He was too good. And Alia, I really wanted to work with Alia, and I think that was the perfect opportunity. She must be watching this podcast. Yes. So one word for her, she's a professional, and there is a very good character in her that gets switched on and switched off super fast. Wow. You will not get to know also when she's gone to her zone and when she's come back. She's a director's actor, and she's an absolute treat to work with. Wow. So first I felt कि यार she's, मतलब इतने कम age में भी she's achieved so much, and she's more mature actor than a lot of mature people like in the industry, and she's doing crazy, she's doing very well. तो वो 2 दिन हमने शूट किया और सर को बहुत मजा आया. Then I think sir also followed me back on Instagram. Wow. And I kept saying कि तो वो स्टोरी पे लगाते रहते कि अब ये सेट पे हम लोग शूट कर रहे हैं या ये लोकेशन पे शूट कर रहे हैं, तो हम लोग नॉर्मली बात कर रहे होते हैं. तो सडनली एक दिन ना मुझे कॉल आता है उनकी टीम से, कुछ 8 महीने 6 महीने के बाद, कि हे जेसन, सर ना हैज एडेड 1 more सीन. हमने कहा चलो, सेम बास्केटबॉल सीक्वेंस है बट थोड़ा डिफरेंट है इस बार. मैंने कहा ठीक है. तो आई वेंट टू द शूट. सर ने कहा जेसन, मैंने जो शूट किया था वो वाला चंक वो बहुत अच्छा था, बट समवेयर इन द फिल्म इट्स प्रोबेबली नॉट गोइंग टू द स्टोरी, मतलब वो स्टोरी के हिसाब से नहीं जा रहा था. तो आई एम टेकिंग शॉर्टर वर्जन, उसको क्रिस्पर कर रहा हूं मैं. तो एक अलग से एक सीन लिखा है मैंने,
तो वो शूट करते हैं एक बार। Correct. हाँ सर, व्हाई नॉट, एनीथिंग यू वांट। अभी हम एक्टर्स तो हम कारीगर हैं, मतलब हमें तो ऑप्शंस देने होते हैं ना हमें। हाँ. तो आपको ये पसंद नहीं है तो ये दे देते हैं, ये नहीं पसंद है तो ये दे देंगे। इट्स लाइक So, कपड़ा बेचना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये पसंद है नहीं पसंद है तो ये दे देता हूँ मैं आपको। तो इट वाज लाइक दैट। सर आई वाज लाइक हाँ सर, ये नहीं तो ये वाला कर लेते हैं ना, कौन सा वाला चाहिए। सो ही वाज लाइक ठीक है, सो ये सीन है जहाँ पर तुम आते हो, तुम ये सब बैठे होते हैं एंड यू कम एंड ब्रेक थिंग्स एंड देन व्हाटएवर यू सीन द फिल्म एंड ये सब है। तो क्या है, चाकू का सीक्वेंस है और वो उंगली काट देती है एंड देन यू फॉल डाउन एंड देन यू स्क्रीम, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस वाज शॉट एंड दिस वाज शोन इन द फिल्म। So I was like, this was a shorter version, like you can say, like lesser than that. replacement. क्योंकि उसमें full one-on-one scene था proper. But even this, I liked it. Like You liked it, yes. Thank you. आप उसको चढ़ा रहे हो and she is like Correct. patience, and Correct. later on she's like मुंह पे आ रहा है मेरे. Correct. मुंह पे आ रहा था ये। And you're like, oh God, हाथ काट दिया यार, shit. That is amazing. Yeah. So there's like behind the scene with Alia. Like you talk with her. Yeah, she's again switch on switch off वाला जो section है ना। I see you in your Instagram. There's a picture has with Alia. Like I guess that basketball वाला ही मैदान. That was the first scene that we had shot together. Okay. The first scene that was there, the lamba scene, Okay. basketball sequence वाला। Oh. वो वाला जो देखा है फिल्म में, वो सेकंड वाला सीक्वेंस था, वो डाल दिया था basically. Okay. So over there only, so Alia is not a basketball player, but she was trained under the NBA people. NBA जो हमारा जो बास्केटबॉल का वो है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उन दोनों को बुलाया है और आलिया को शायद 2-3 महीने का ट्रेनिंग दिया है। एंड शी लुक्स प्रोफेशनल ओनली, शी लुक्स, ऐसे लगेगा ही नहीं दैट शी डज नॉट नो हाउ टू प्ले बास्केटबॉल। सो देयर वाज अ सीन, अभी आलिया को 3 पॉइंटर्स मारने, 3 पॉइंटर्स मतलब अगर यहाँ पे नेट है तो यहाँ पे 3 पॉइंटर्स, यहाँ से मारना पड़ता है इतना दूर से। अभी सर ने बोला है चलो इसको कट में ले लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, शायद फर्स्ट गो में नहीं जाएगा, सेकंड गो में नहीं जाएगा, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, नाइट सीक्वेंस है, सुबह हो जाएगी मतलब। सो आलिया वाज लाइक नहीं करते आई थिंक द 4th टेक में गया उसका, 5th ऑल्सो इट वेंट, मतलब इट वेंट प्रॉपरली करके 4-5 टेक में खत्म हो गया था। Seriously, she has done by herself. She did it herself. तो basically she gives me a fake and then she goes back and she hits the 3 pointers. तो 1 2 3 नहीं हुआ था। Then sir was like, कट में करे क्या इसको? She's like नहीं 1-2 बार और ट्राई कर। उस 1-2 बार में ही उसने खत्म कर दिया। कट and because we are actors we have to continue the scene. तो उसने जब पहली बार मारा था ना, और जैसे सर ने कट बोला था, me and Alia looked at each other and screamed, what? I think we hugged and all and we were like, what the hell? Are you serious? She's like, मुझे भी नहीं पता। हो गया बस हो गया। And we just continued because we were actors only ना। तो ऐसे देखा 1 सेकंड के लिए I just felt like looking at her कि shit are you serious? But मैं ऐसे देखा और देखा उसे and then sir was like cut. I'm like, are you kidding me? So it was fun. It was so much fun. Actor has to learn everything. Even Janhvi Kapoor, उनकी कोई पिक्चर आई थी। Oh, Mr. and Mrs. Mahi. Yes. And मैंने जब उनका एक रील देखा था। Correct. Okay. And I saw she is doing practice. मतलब वो पकड़ना कैसे बेड को। Janhvi is also killing it, huh? Just by the way. Yeah, she's amazing. She's very good, yeah. I mean, she still has that burst, capability to burst out now. मतलब वो कभी भी फट सकती है मतलब आप ना, मैंने जब ये मिस्टर एंड मिसेस माही का जब आई सॉ दैट ट्रेलर एंड लेटर ऑन शी पोस्टेड कि वो प्रैक्टिस कर रही है घर के अंदर, और आई डोंट नो वेयर इट वाज, बट शी वाज प्रैक्टिसिंग, उनको कोई सिखा रहा है। एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि वो सच में सीख रही है, सच में खेल रहा है उसने उस पिक्चर में। आई वाज लाइक वाओ, डेडिकेशन तो ऑब्वियसली है ना। मतलब फर्स्ट आई यूज्ड टू थिंक यार कोई डबिंग कर लेता हो यार, कोई तो है, कोई कर लेता होगा, वी डोंट नो। हमें ऐसा एडिटिंग आजकल इतनी अमेजिंग हो गई है कि नहीं कोई और बॉडी डबल कोई कर रहा होगा, या एग्जैक्टली।
But no. I think it's a good thing that all the new generation people are taking the initiative to learn Exactly. the mannerism and the body language, everything to suit the character. So, which is good. And Janvi plays with her eyes, man, mostly. Matlab, she's very amazing, expressive. I'll tell you. I love her. And I feel Alia is very technical. Yeah. She's very technical. She'll know exactly what to say, what to do, and what movement to do that time. And Janvi is all emotional आँखों with से the बात आँखों से. करनी है. Yeah, She has beautiful that eyes also. her, you know, Sridevi wala. Sridevi wala. Yeah, She she has that has eyes that. also. Yeah. Beautiful eyes. If you even talk with her, na, she talks like Sridevi only. Sridevi only. Yeah. So I'm working with her sister, Khushi Kapoor. Kushi Kapoor. Yes, I'm doing a film. She is like different. Kushi Kapoor is little She's different. very different. She's She's very- clumsy. She's amazing at the very same hand. She is 20, 21, 22 wali girl hai. Yeah, Very new girl. Baby. New girl मतलब not in terms of like new girl, मतलब आज की डेट की girl है. Generation, वैसे, हाँ, today's जो wise generation है ना, generation. she's very like that. Yeah. Very chill, very sweet to talk to, very she मतलब कोई joke भी crack करे, she will laugh at it, things like that, you know. Yeah. So in the film, my scene is mostly with Junaid Khan. There's Junaid Khan who done this, what we Maharaj. say, Amir Khan's son, correct. Yeah. So basically we are friends with him, Oh. and basically it's both of their journey, Okay. and it's a college type वाली phase में है, ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता, but Rom-com type. rom-com you can Yeah. say. Yes, and absolutely crazy, yeah, working with both of them. How the industry has changed, like when you worked in D3 or till now, like कुछ vast difference है Of industry course, में. I feel audience has become very intelligent. Mhm. The cinema has changed drastically. Mhm. कैसे पहले जो कॉमेडी हुआ करता था और अभी कैसे कॉमेडी होता है, इज वेरी डिफरेंट. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. आजकल स्लैपस्टिक इतना चलता नहीं है. Correct. पहले स्लैपस्टिक ही चलता था चलता mostly. था, yeah. अभी इफ यू गो लिटिल ओवर द टॉप आल्सो, इट गेट्स लाइक अरे यार ये ज्यादा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसे हो जाता है. Hmm. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू ओवर द टॉप आल्सो बट कन्विंसिंग वे, हाँ, तो वो चलता है. चल रहा था. So, again, coming back to the topic, the industry has changed. They have become more mature. They understand emotion. कोई चीजों में जो punches होते हैं comedy wise, अगर नहीं लगते तो वो लोग को हंसी नहीं आती है. Correct. Basically, and they don't like it. They're like, अरे क्या है ये, बच्चों का है क्या ये? Hmm. So they have become very mature, and I feel industry is evolving. Yeah. Undoubtedly, more of realism. कि अगर चांटा मारने तो मार ही दो यार, see the emotion how the person is going to Yes. feel, Wonder. and वो बिल्कुल change हो जाता है यार. It becomes, I mean, it's just become very real now, and Correct. I feel that's even better for all of us, Mhm. because I think we are in the very good stage of cinema. Cinema, yes. Yeah, very good stage of the industry, because everyone is quite matured now. You get content like that talks about guy relationship or girl relationship, and Yeah, also exactly. this is open. This is amazing. Yeah. Like, not just for us, for the people who are, you know, in Yeah. love with a girl, Of or course. the guy who is in love with a Ah. guy. It's totally fine. I believe it's okay. Yeah, of course. And हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है. हाँ, सोचते we are adapting the Western culture plus Indian culture as well with that. करेक्ट. वो जो पूरा टैबू हुआ करता था वो सब तोड़ रहे हैं, वो Mindset नॉर्म्स change हो तोड़ गया रहे है हैं. लोगों हाँ. का कि बीच भाई में टूट रहा है. शादी तोड़ गई तो तोड़ गई. It's हाँ. okay. लड़की खुश नहीं है, लड़का खुश नहीं है, बट खुशी इज मोर इम्पोर्टेंट, मैन. Correct. People are तोड़ रहे हैं वो लोग. understanding now these days. So, This thing is Yeah. amazing. So, I believe. huge props to all the filmmakers and the directors and writers that are actually venturing all this, Correct. and people are more understandable and more accepting, which is good. Good. Which is very good in a way. Exactly. Yeah. So we're gonna have a rapid fire question. So first one, okay, rapid fire questions. What is your favorite Bollywood movie all of the time? अंदाज अपना अपना. Oh,
You have your andaz, I believe. Oh yes, Amir Khan. मैं बताता हूँ. Okay. The second one, who is your Bollywood crush? It's King Khan, obviously. I guess he's I think everyone's it's everyone. हाँ, crush. पुराना प्यार है यार. यार तो मेरा crush छीन नहीं सकते. वो तो छीनना ही पड़ेगा ना. It's a battle, yeah. And now it's female. I think beauty wise, I think Sonali Bindri is very beautiful. Yeah. Okay, the interesting one. If you could swap your life with any Bollywood actor, who it will be and why? I would swap my life with King Khan, yeah, Shah Rukh Khan. Obviously, I want to know his life, what he eats, what he likes, what he likes to chat, who does he talk to, कितने ऑफर्स आते हैं, क्या क्या कौन से कितने पैसे का लेना होता है, कितना पैसों का लेन देन है और वगैरह वगैरह. No, apart from that, I want to know his life, man. I mean, I've been a huge fan of him and his work since the very beginning. Bollywood dance challenge. If you have to choreograph, any song pe, any Bollywood song, and you are choreographing that. I want to choreograph Muqabla. Muqabla. Yes. And how you're gonna do that? I'll put my own flavor. Oh. Yeah, I'm a choreographer. I can do that. I mean, it's a very peppy number, and I feel it still resonates with a lot of dancers Correct. till now, and it has very good beats, way ahead of its time. That song was. Agree. Yeah. One more. If you can do a one romantic movie with any Bollywood actress, who she will be and why? I think Madhuri Dixit. Oh God. Her eyes is to die for. I mean, she's so Yeah. expressive. I think she emotes everything through her eyes, and she's beautiful person. She talk with her And eyes, I guess. Yeah, she talks with her eyes. Yeah. You get mesmerized with it, and you can totally get into her world. And I think Madhuri for sure, Madhuri Dixit for sure. Okay, Madhuri. Okay. Any fan moment happened with you? Only with Shah Rukh Khan. Yeah, is it? Only with him. I don't know why. You got excited? I don't know why. I have butterflies for some reason. I don't know if it's normal for guys also. It is. It is normal, right? Totally normal. I mean, I've worked with other actors as well in the Bollywood industry, and Shah Rukh sir को देख ही होता है यार हमेशा. Even though I've worked with him, even though I've worked with him, and even though I've conversed with him, party bhi ki hai alag se, Wow. but I still get butterflies and nervous for some reason. Okay, so the last one. What is the funniest shoot or behind the scene happened with you? Like which you remember always? You're gonna remember that always. I remember there was this scene when I was doing Happy Phir Bhag Jayegi. Oh yeah. We were in the car, me, Jassi Gill, and Sonakshi Sinha. Okay. So both of them were sitting behind. I was sitting right over there. तो क्या है ना अभी हम लोग क्यों सुन रहे हैं कि जैसे सर एक्शन बोलेंगे हम लोग अपना एक्शन करेंगे. Correct. अभी वेटिंग तो क्या है ना विंडो को इतना ही खोला था हमने हाँ. कि आवाज आ जाए. वेटिंग तो दोनों बस वेट कर रहे हैं और उनको पता है कि अभी शॉट रेडी नहीं है, कुछ चल रहा है कुछ ना कुछ, एंड आई एम जस्ट वेटिंग, जस्ट गेटिंग रेडी फॉर इट. तो एकदम से सोनाक्षी वाज लाइक चलो लेट्स गो, एंड आई वेंट लाइक हाँ लेट्स गो. तो आई आल्सो डिड द सीन, आई एम डूइंग द सीन नाउ. आई वाज लाइक अरे दरवाजा खोला, मैंने देखा अरे निकले क्यों नहीं? मतलब अभी तो लोग भाग रहे हैं, सेटिंग वाला थोड़ा सा इधर कर रहा है उधर कर रहा है. मैंने कहा अरे I sat down in the car, I looked back, they started laughing there. They were just laughing crazily. I'm like, They make you lol. मैंने कहा प्लीज यार मत करो यार ये. Then फिर वही चिढ़ा रहे थे कि अरे जैसन रेडी हो गए, रेडी है हाँ रेडी है. मैंने कहा अभी तो सुन ही नहीं रहा मैं. ये ऐसा हो गया ना शेरा है हाँ. The day शेर आया. Imagine the director said action also और मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब that would be the funniest. But I was alert, obviously. So that was very funny because they kept pulling my leg. The second most funny thing was I was choreographing for a reality show, DID. उस दिन का judge was Farah Khan. Oh. तो हर एक्ट के बाद
एक देयर इज अ गैप बिकॉज दे हैव टू गेट द न्यू प्रॉप्स. Yeah, किसी और correct, का जो lightings act होता है and ना, all. किसी और का जो प्रॉप होता है वो लाते हैं. Correct. वो एक दो टेक्निकल चीजें होती है, तो हम लोग वेट कर रहे होते हैं. तो एक एक्ट खत्म हो गया तो फारा मैम कॉल्ड मी लाइक जेसन 1 सेकंड कम टू द वैनिटी. हाँ कुछ पूछना है. हाँ ओके ऑफ कोर्स मैम. कब कितने बजे आना है? कह रहे ये खत्म हो जाए उसके बाद आ जाना. मैंने कहा ओके. तो मैं चला गया. जैसे अंदर घुसा वैनिटी खोल के, फैंसी वैनिटी है, गो इनसाइड. हम लाइक बहुत सारे लोग हैं यहाँ, पूरा ऑन्ट्राज है वहाँ पे. हाँ. तो यस मैम बताओ. जेसन वुड यू लाइक टू वर्क इन द फिल्म? हाँ मतलब so you will be in the villain team and you will be opposite शाहरुख खान्स टीम. हाँ तो करोगे क्या? अभी अंदर से मैं तो चिल्ला रहा हूँ कि ऊपर से मैं यस मैम हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है. कह रहे ओह सुपर माय मैनेजर विल कॉल यू एंड जस्ट टेक हिज नंबर एंड ऑल. और वो लिख देना ठीक है. और हाँ एक और चीज़ है कि एक गाना भी कोरियोग्राफ करना है मनवा लागे विच इज द क्लाइमैक्स सॉन्ग. मैंने कहा हाँ मैम हो जाएगा. तो अब मैं ऊपर से बिल्कुल ऐसे काम करके मैं बता रहा हूँ कि हाँ मैम ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा करके मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ. जैसे दरवाजा बंद हुआ जो चिल्लाया मैं अंदर से जो चिल्ला रहा. आई हैड टू गो लिटिल मोर आगे, टेक 2-3 steps further and I had to scream first. Oh God. What? Opposite Shah Rukh Khan and she's asking me will you work opposite Shah Rukh Khan. I'm like obviously say no to Shah. हाँ I'm like yeah ऐसे कौन बात करता है यार. So anyway I went into all the squeaky mode. अभी उस बात को हो गए 1 महीना 1.5 महीना ठीक है. अभी मैं वही जुहू वाले घर पे रह रहा हूँ. फोन आता है हाँ अननोन नंबर से. मैं नींद में हूँ. हाँ कुछ 11 बजे की बात है. हेलो जेसन listen can you Jason Farah here. कौन? फारा है यार. कौन है यार बोलना. क्या फारा बोल रहा है तू? So I was thinking कि वो दोस्त मेरा मजाक कर रहा है. जेसन स्टूपिड फारा खान बोल रही हो. मैम ओ शिट हाँ आपने जो बोला था बोलो. यस कम टू द ऑफिस रेड चिलीज आ जाना 4 बजे है ना. कुछ सेट वेट करना है ना ऐसे 2-3 चीजें करनी है. मैंने कहा कॉस्ट्यूम देखना. हाँ यस मैम आ जाऊंगा. ऐसे बन किया है ना उसने. ओ शिट हार्ट फेल हुआ है मेरा यार यहाँ पे. तो उठी गई यार नींद तो मतलब मैं तो पागल हो गया था यार. आई वाज लाइक व्हाट द हेल. आई स्टिल हैव फारा खान्स नंबर. I'm never going to pick up like that, man. I have to save that number. Save it, yeah, obviously. Yeah. It was crazy. What a ball I had shooting that. Amazing. Happy New Year. So if we talk about the script, you know, लोग कैसे prepare करते हैं? different तरीका होता है. Before getting a script, कोई nervous होता है, कोई कुछ, you know, they are thinking something else. So how you prepare, like? Whatever script I get, how I approach it is I have to understand what happened before this. Correct. What might happen after this. Oh, you have to understand the whole. I just want to know कि क्या है. So I usually ask for a context to my casting directors कि अच्छा आपने स्क्रिप्ट तो दे दी है, इससे पहले क्या हुआ है कुछ आइडिया है. अगर usually वो लोग बोलते हैं कि नहीं आप खुद ही सोच लो या ये है कोई बता देता है कि ये चीज है. So that gives me a structure. कनेक्ट करने के लिए कि मैं आ क्यों रहा हूँ यहाँ पे और मैं ये लाइंस क्यों बोल रहा हूँ. So that is very important because I need to know why I'm doing it more than how I'm doing it. Correct. So why am I doing it? And I usually think of कि चलो अगर ये सीन बाहर है तो कहाँ पर हो रहा है. अच्छा कैफे सीन है. कैफे सीन में क्या सुबह को हो रहा है या रात को हो रहा है. क्योंकि अगर रात को हो रहा है तो ये मेरा मैनरिज्म थोड़ा डिफरेंट होगा. प्रॉब्ली आई एम टायर्ड व्हेन आई हैव कम. अगर सुबह को हो रहा है तो प्रॉब्ली it's sunny and I'm perspiring probably. So probably I'll have a rumal maybe with myself or I'm having a cold drink with me. Correct. So that gives me a bone कि चल इसके साथ मैं थोड़ा मसाला मिल रहा है मुझे. अभी इसी को ही मैं थोड़ा सा कैरेक्टर में डालता हूँ. So I usually do that and I always think कि इसको अलग कैसे करूँ मैं. ये जो स्क्रिप्ट है कुछ 10,000 लोग ऐसे ही बोलने वाले हैं. करेक्ट. मैं 10,000 में से ऐसे कैसे करूं कि शायद थोड़ा अलग कर रहा है.
सो मैं एक चीज डाल देता हूँ बीच में, वाओ, एक मैनरिज्म डाल दूंगा, एक बीच में मैं उसका चाल बदल दूंगा. कैसे बदल दूंगा? मैं एक पत्थर डाल दूंगा अपने जूते के अंदर, तो मेरा चाल ऑलरेडी क्रूकेड हो गया. करेक्ट, तो मेरा ऑलरेडी आई एम नॉट वॉकिंग स्ट्रेट, नाउ आई एम वॉकिंग लिटिल डिफरेंट. करेक्ट. तो उसी में मेरा एक कैरेक्टर बन गया है. तो अभी मैं इसमें और क्या मसाला डालूं? अभी इसका बैक स्टोरी में इसके मॉम डैड कैसे थे? Was he rich? Was he not rich? Was he poor? Was he is he well educated? Is he like बिल्कुल राउडी सा बंदा है? तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा और ऐसे ऐसे बनता रहेगा. तो एक चीजें मैं डालता रहूंगा एंड देन उस कैरेक्टर को मैं शेप अप करूंगा, लाइक अ स्कल्पचर में बना रहा हूँ. सो माय प्रिपरेशंस इज लाइक दैट. एंड वन थिंग फॉर श्योर दैट इफ आई एम रीडिंग द स्क्रिप्ट, मैं कम से कम विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग पहले कम से कम 20 बारी 30 बारी सिर्फ पढ़ूं. पढ़ता जाऊं. Even though I know what it is, I will still learn it so that my mouth का exercise हो जाए. So it's very important. So my preparations are usually that. So how you select your script? मतलब जैसे मान लो आज आपको कोई script है and you like that movie or you might not like that scene or whatever. So क्या prefer करते हो आप mostly? See, liking a script has a lot of parameters. Either you do it for the director. Correct. Either you do it for the character that you've read about. Or you either do it for the money. है ना? So अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हो रहा है, then I don't think so you should do it also. Correct. ठीक है. Sometimes ऐसे होता है कि रोल छोटा है, मतलब the scene is small, but you're working with a very good director. Correct. This is important. Like why not? You want to work, you want to showcase your work. Probably this is the opportunity, you should seize it. There are times where अननोन डायरेक्टर है एंड स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है बट पैसा बहुत है उसमें. आई मीन इन द सेंस कि तुमने जो मांगा है वो दिया क्योंकि यू आर फिटिंग द कैरेक्टर, बट यू डोंट वांट टू डू इट, बट यू गेटिंग वेरी गुड मनी अबाउट, यू नो, यू गेटिंग रियली गुड मनी. कर लेता हूँ, क्या हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है. एग्जैक्टली. व्हेन देयर इज व्हेन एवरीथिंग इज सेइंग यस यस यस. फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी देख लिया कि यार ये स्क्रिप्ट में मुझे पसंद नहीं आ रहा ये बिल्कुल भी, आई डोंट वांट टू डू इट. देयर इज अ गट फीलिंग जो सबके अंदर होता है, और वो अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा करने को तो मैं शायद मैं मना ही कर देता हूँ बेसिकली. Okay. And I tell them that I'm not interested यार. We'll work on something better next time, but अभी let's not do this. It's like सामने वाले को भी hurt ना हो. हाँ, तो बंदा बोले नहीं सर आप बहुत अच्छे हो इस चीज के लिए, ये प्लीज they really like you, they really like what you do and all, and you fit this character, but I said there's no substance to it. Correct. एक substance होता है हर चीज का, मतलब महत्व होता है एक स्टोरी को लेकर, मतलब इसको लेकर स्टोरी का ट्रैजेक्टरी थोड़ा चेंज हो रहा है या ये एक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है. इवन योर कैरेक्टर इज इंपॉर्टेंट और नॉट, दिस डजंट मैटर. करेक्ट. तो चाहे एक सीन हो या 2 सीन हो, अगर तुम एक अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हो, कैन बी फॉर एनीथिंग, देन डू इट फॉर दैट. व्हाई नॉट? तुम्हारा प्रैक्टिस ही हो जाएगा. So there was a time जब ना casting couch होता था लड़कियों के साथ, you know. Yeah. I don't know if अभी होता है कि नहीं, but maybe होता होगा. But this happened, लड़कों के साथ casting couch होता है. 100% होता है. There is no कि सिर्फ लड़कियों के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है. So why, you know, nobody talks about it. Like if you see girls, women talk about it. Yeah. But what is the reason that guy doesn't talk about it? गाइस के साथ भी होता है, यू नो. यूजुअली राइट नाउ कास्टिंग काउच वी से कि लड़कियों के साथ ही हो रहा है, सो वी एसोसिएटेड दैट विद गर्ल्स ओनली. सो गाइस आर नॉट वोकल अबाउट इट सो मच. लड़कों का क्या है ना, आई टेल यू एन इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड विद मी आल्सो, बट okay, so basically how it happened was there was this guy who said ki kindly share your pictures and photos and videos or whatever. और ये बिल्कुल initial stage का था, and I didn't know कि कैसे चल रहा है industry. He gave it, I sent it. He's like sir एक बार meeting के लिए आ जाओ, ये अंधेरी साइड में. मैं चला गया, शेडी सा कुछ बार टाइप का था. छत पे बैठे हुए थे ये लोग, तो 2 लोग थे लड़के लोग, तो आए बैठे, सर हम लोग कल निकल रहे हैं शूट के लिए.
हम लोग Okay. कल निकलेंगे शूट के लिए, तो आप रेडी हो ना? हाँ, बट ना कैरेक्टर बताया है, ना पैसे बता रहे हो, ना कुछ बता रहे हो. दिस इज इनिशियल स्टेज. Correct. हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, बट क्या है शूट? Hmm. वो उस टाइम बता देंगे हम लोग, वो उस टाइम बता देंगे हम लोग. मैंने कहा अच्छा. इज लाइक अच्छा, एक और चीज है सर, ये ना द प्रोड्यूसर मैम जो है ना, मैम उनको बहुत पसंद आया आपके फोटोज और वीडियोस. हाँ, Oh. मैंने कहा अच्छा, अच्छी बात है. आई डिडंट नो ना व्हाट दे आर इंस्टिगेटिंग. Yeah. हाँ अच्छी बात है. तो बोले नहीं नहीं, बहुत पसंद आया है. Okay. तो आई अंडरस्टूड. एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा सा ना ऐसे हो गया. अच्छा, तो इज लाइक तो कल एक बार हम लोग मिलते हैं, है ना? सुबह को गाड़ी आ जाएगी आपको उठाने के लिए, आप सीधा सेट पे ले जाएंगे हम. और कहाँ पर? लोनावला सेट. Oh God. कैसे भी करके मैंने बोल दिया ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. इज लाइक आप जल्दी बता दो, क्योंकि फिर वो मैम को भी बताना है. Hmm. मैं कहा अच्छा. मैं घर गया वापस. आई डिस्कस्ड इट विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल. दे आर लाइक भाई तू निकल यहाँ से, डोंट से यस टू दिस इज अ वेरी शेडी थिंग दैट दे डूइंग राइट नाउ. मैंने उनका फोन नहीं उठाया, उनका मैसेज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया. आई गॉट सो स्कैर्ड बिकॉज़ आई वाज फेयरली न्यू टू दिस. Because as a girl, I can sense it. Yeah. How does it feel? हाँ. But as a guy, I cannot sense it. Yeah. Like Exactly. लड़कों के साथ कैसे होता होगा है? ये चीज़? Correct. It was very new experience and something that I do not want to recall it because it's good that I came out of it. Correct. I mean, agar if I was that hungry for work, probably other people would have done it also. That is, they would have met and और ऐसा भी नहीं कि एक ही चैनल है, मतलब वो that producer would tell you to meet Chain the बना दे. Yeah. friends of hers or guy friends also and ये वो वगैरह वो, क्योंकि एक ही चेन नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे लिंक होते हैं. Agree. So, what do you think about the new generation acting career? What you would love to suggest? Who are newcomer, not a star kid or something? Okay, so people who are just joining or who's considering to come to this acting field, I feel more than anything, you please work on your craft first. I think you must have heard it gazillion times by everyone else. सबने ही बोला होगा इसके बारे में कि पहले क्राफ्ट पे काम करो, which is very very important, क्योंकि अगर आप क्राफ्ट पे काम करोगे तो आप लंबे रेस का घोड़ा बनोगे. Correct. आप एक दो फिल्म करके आप you'll go dry after that. Your luck will play first 2 films, probably your first film only, and it will dry out if you're not a good actor. Correct. It should be more like कि अरे ये बंदा इस कैरेक्टर के लिए बैठता तो नहीं है, पर ये एक्टर अच्छा है, तो इसको इसके लिए भी बुलाओ. एंड लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है, बिकॉज योर एक्टिंग इज गुड, दे चेंज द कैरेक्टर का नरेशन ऑल्सो. कि चलो ये बंदा यंग दिख रहा है और कैप्टन का रोल है, चलो उसका रैंक थोड़ा कम कर देते हैं, Correct. थोड़ा कम कर देते हैं, बट मुझे इस सीन में ये बंदा ही चाहिए बिकॉज हिज एक्टिंग इज गुड. सो डू लॉट ऑफ वर्कशॉप्स, डू लॉट ऑफ थिएटर वर्क, प्लेस, थिएटर, एंड जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है उठाओ, जहाँ से जितना भी ऑब्जर्व करना चाहते हो ऑब्जर्व करो, बिकॉज दैट्स द नंबर 1 रूल ऑफ एन एक्टर, टू ऑब्जर्व पीपल एंड सी व्हाट यू कैन टेक फ्रॉम देम. Also, I feel if you do theater, you will learn a lot more about acting wise, because मैंने कहीं पे देखा था, कहीं पे रील में से कुछ देख रहा था, तो someone was saying कि theater work is actually where you learn acting. Correct, because it's live. It's live, and film is where you might be. Film is basically a filmmaker का narrative है, मतलब it's for filmmakers basically. You can say the most emotional dialogue, the most serious dialogue, and you're giving your best performance. But if the director is taking your shot of your legs, मतलब ऐसे zoom in कर रहा है, तो कोई मतलब नहीं है, तो वो filmmaker का medium है, films. If you really want to learn craft, you should join. You should do a play, you should do theater, where you can keep practicing your craft, and that's very important. A lot of people just want to jump into the wagon, you know.
कि भाई अरे 2-3 तो ऑडिशन दिए मैंने, अभी मैं इसका वेट कर रहा हूँ, अभी मैं और इंट्रो देता हूँ और इसमें ये कर लेता हूँ। मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि तुम दिल्ली छोड़कर मुंबई आए हो, तुमने क्या क्या किया है? कुछ नहीं किया मैंने बॉडी बनाई है। अच्छा ओके। एक्टिंग को लेकर तुमने कोई भी वर्कशॉप्स किए या कोई भी प्लेस किए? नहीं, अभी नहीं किया। बट मैं आई वांट टू गिव माय इंट्रो टू मुकेश छाबड़ा, आई वांट टू गिव माय इंट्रो टू कास्टिंग बे, टू एंटी कास्टिंग एंड ऑल। मुझे इंट्रोज देने हैं। मैंने कहा उससे कोई मतलब नहीं होगा। करेक्ट। क्या मतलब होगा उससे? वो एक ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, तुमने उसमें बहुत गंदा किया परफॉर्म, वो कभी नहीं बुलाएंगे तुम्हें फिर। एंड एक मैम के कितने लोग आते हैं? कितने लोग आते हैं? दे हैव अराउंड thousands and thousands of people to search for। अगर बाई चांस की बात है, सब कुछ सर्च करने के बाद वो लोग तुम्हें सिलेक्ट करते हैं टू कम फॉर एन ऑडिशन, और उसमें भी तुम हकते हो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अग्री, टोटली अग्री। तो या तो तुम पहले ही प्रिपेयर्ड रहो कि जब मौका आए तो फिर तुम उड़ा दो एक ही में, बिकॉज पीपल वांट टू डू गुड, मतलब दे वांट टू सी यू डू गुड बेसिकली। जो ऑडिशन भी ले रहा है ना, उनको चाहिए कि तुम आगे वाला बंदा अच्छा करे, करेक्ट, एंड दे वांट टू बी ब्लोन अवे बेसिकली। बट अगर तुम्हारा क्राफ्ट ही नहीं अच्छा है तो तुम किस बात के पैसे ले रहे हो यार? एज ऑनेस्टली एज इफ वी कैन ब्रूटली से दिस, कि you want to take money, you want to earn money also, but your work is only not good. Correct. तो पहले उस पे ध्यान दो, and then उसके बाद then you keep seeing different avenues, different mediums. So how do you feel to be our very first guest on our show? I loved it. Never done podcast before, and I think I'm getting a hang of it. All thanks to Sejal, because she made me very comfortable, and also the team who's right here, and thank you for making me comfortable, and I think this is very good experience. Yeah, I wish to again see you in different podcast with different anchor and a big channel. Obviously this is a big channel as well, 100%. But more big channel, and I more wish you wish you a very good luck on your upcoming project. Can you just tell me the name of the project if it is okay for you, or let's keep it suspense? I can just tell you, one is a film and one is for Netflix. Okay. I wish you good luck. Thank and you. I hope to see you बहुत सारे पिक्चरों में. Thank you. Not on a break, but definitely back to back work. 100%. Yeah. And likewise for you also, where you achieve new heights and you interview many more people and big cast, big actors also. And I wish you all the very best with the channel.